Good morning everyone. In previous class we have studied about magnetic flux and the SI unit and CGS unit of magnetic flux. Today we are starting with dimensions of magnetic flux and then we will start electromagnetic induction. So to calculate the dimension of magnetic flux, as we know, flux phi is equals to B into A, and we also know that the force uh, on any current carrying wire in a magnetic field F is equals to QVB sin theta, QVB sin theta. This we have already studied in our previous chapter. So from here F is equals to Q, if I say B is equals to, then it is F upon QV sin theta. We will put those two things together, then the phi is equals to B की जगह ये, तो we will get F upon QV sin theta multiplied by the area or the dot of the area. ये dot नहीं, अभी चूँकि हम स्केलर केवल यूनिट निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन. So we will get MLT minus 2, the force, area L2 divided by Q चार्ज कूलम, एंड कूलम को हम लिखना चाहिए हमें एम्पियर इंटू टाइम. सो वी शुड राइट इट एम्पियर इंटू टाइम. Q इज इक्वल्स टू IT, यस, एंड दिस एस LT minus 1 the speed, and sin theta no dimension. So we will get ML2T हाँ ये कैंसिल आउट, ML2T minus 2 divided by A T minus 1. So it is T minus 2 and here is T minus 1 and T plus 1, sorry, T0, T and T. So we will get phi, dimension of phi is equals to ML2 A minus 1 T minus 2. So this is the dimension of magnetic flux, and units I have already taught you. So next is positive and negative flux. See, flux could be positive and negative. Just because flux is a scalar quantity, this is very crucial to understand why flux could be negative and positive. क्योंकि flux तो वेक्टर नहीं है, तो फ्लक्स पॉजिटिव निगेटिव क्यों हो सकता है? देखिए, दो केसेस हैं. फर्स्ट वन इज आवर मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन. Magnetic field in this direction in both cases. Here this is our magnetic field. Now this is area A. Now first case, as we know, area vector could be in this direction also and this direction also. So if we are considering area vector in this direction, then the angle between area vector and magnetic field is 0 degree. Theta is equals to 0 degree. So phi is equals to B dot A, and it is BA cos theta. So it is BA cos whatever it is 0. So it is 1 BA. Alright, then it is BA plus of BA. But now if I consider area vector in this direction, अब देखिए जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट ही हो सकता है एंगल में हो, ये जीरो की जगह मतलब ये जो इस डायरेक्शन की जगह किसी और डायरेक्शन में हो, क्योंकि हमें कंपोनेंट लेना है. अगर कंपोनेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है B और A के, तब तो पॉजिटिव. अगर कंपोनेंट अलग अलग डायरेक्शन में, मीन्स वी आर कंसिडरिंग एरिया वेक्टर इन लेफ्ट साइड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन दिस साइड, then the angle becomes 180 degree. So phi is equals to BA cos 180 degree, cos 90 plus 90 sin 90, but it is minus sin 90. So it is minus of BA, just because it is minus 1, तो minus of BA phi. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एरिया वेक्टर पे डिपेंड करता है कि इधर ले रहे हैं कि आप इधर ले रहे हैं एरिया से. इट इज़ पॉजिटिव और निगेटिव फ्लक्स. इट इज़ नॉट दी स्केलर क्वांटिटी, तो वेक्टर वाले फॉर्म के कारण नहीं है, एंगल के कारण निगेटिव और पॉजिटिव होता है. ऑलराइट, सो नाउ
we are going to study a very important topic, or we start a very long and important topic, that is electromagnetic induction. It is the basis of all the electricity we are seeing in our cities and our metros. जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन हो रहा है वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है. The phenomena of production of induced EMF and induced current due to change of magnetic flux linked with a closed circuit is called electromagnetic induction. So firstly, the quantity which is created, induced EMF and induced current, ठीक है, ये क्रिएट हो रही है, तो ये इंड्यूस्ड है यानी किसी और के थ्रू पैदा हुआ है, एंड इट इज़ ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर term or particular experiment or particular behavior, we must see what Faraday did in his experiments. See, in 1830s or more precisely 1831, Michael Faraday, an English physicist, conducted an experiment. He did some experiment with the help of some wires and magnets. So let's see this animated video to understand it more properly. What are Faraday's experiment? All right. देखिए, फैराडे लॉ को समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि क्या, सबसे पहला एक सवाल आता है प्रैक्टिकल कि क्या हम इलेक्ट्रिक करंट पैदा कर सकते हैं बिना बैटरी के, मींस बिना किसी केमिकल के. सो फॉर दिस वी हैव टू स्टडी दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो लेट्स सी. So see, here we are going to study this. Firstly, as we know, we can, when we flow a current in a coil, some kind of magnetic field is generated around it like a bar magnet. तो ये फील्ड लाइंस पैदा हो जाती हैं. तो इसका मतलब हमने देखा था कि हम इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर सकते हैं. लेकिन ये माइकल फैराडे ने ये सोचा कि क्या इसका उल्टा भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड से क्या इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो सकती है. तो इसी के बारे में समझने के लिए उन्होंने कुछ एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना. इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता हुई उसको देखते हैं. देखिए, मैग्नेटिक फील्ड से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पैदा करेंगे तो ऑब्वियसली किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होगा. ऑलराइट, तो देखिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हुई. फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद एन एक्सपेरिमेंट, दैट इज़ वी विल यूज़ अ कॉयल, अ करंट कैरिंग कॉयल. ये कॉयल है. अब देखिए यहाँ करंट कैरिंग नहीं है, ये केबल कॉयल है. अब देखिए इसमें करंट को मेजर करने के लिए कि करंट है या नहीं, हम एक गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल कर रहे थे. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए, थोड़ा सा समझना ईजी हो जाए, इसके लिए हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर की जगह एक बल्ब यूज़ किया. मतलब ऐसे मान लिया कि अगर एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है तो ये येलो मूव करता है, दूसरी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करती है तो ब्लू ग्लो करता है. ठीक है, तो जिससे हमें समझने में आसानी होगी इस एक्सपेरिमेंट को. बाकी काम गैल्वेनोमीटर का ही है ये. ठीक है, अब इसमें देखिए हमें क्या करना है, बिना किसी बैटरी के करंट फ्लो कराना है. क्यों? क्योंकि हम यही तो चेक करना चाह रहे हैं कि क्या मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हो सकता है. तो हम इसकी जगह मैग्नेट यूज़ करेंगे. ठीक है, एक बार मैग्नेट, साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन. ऑलराइट, सो हमने ये सोचा कि क्या मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो सकती है. तो बार मैग्नेट अगर इस तरह प्लेस कर दिया है बीच में तो करंट होनी चाहिए थी. लेकिन हमने ये पाया कि बार मैग्नेट यहाँ पे है पर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है. इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट नहीं पैदा की जा सकती है. अब इससे फैराडे मायूस हुए. अब उन्होंने क्या किया, कुछ और किया. उन्होंने उसको दूर हटाया बार मैग्नेट को, और देखा कि जैसे ही उन्होंने मूव कराया एक बार येलो ग्लो किया, और जैसे ही उसकी तरफ ले गए तो एक बार ब्लू मूव किया. फिर उसके बाद इसी चीज़ को उन्होंने ट्राई किया कि बार मैग्नेट को जब हम मूव करा रहे हैं, यानी जब तक खड़ा था अपनी जगह पर प्लेस था तब तक कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही हम मूव कराते हैं वैसे हम पाते हैं कि यहाँ पे बल्ब ग्लो करता है. यानी कोई एक इंस्टेंट के लिए करंट फ्लो करती है, एक बार एक डायरेक्शन में एक बार दूसरे डायरेक्शन में.
इससे काफ़ी इंटरेस्टेड हुए फैराडे और उन्होंने इसको और ज़्यादा अलग अलग तरीक़ों से करने की सोची। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, इस कॉयल को खुद मूव करा के देखा, मींस बार मैग्नेट को अपनी जगह प्लेस किया और कॉयल को मूव कराया, तो पाया कि फिर भी ये ग्लो कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन हुआ तब करंट मूव करी, और जैसे हम पास ला रहे हैं तो एक डायरेक्शन में और जब दूर लेके जा रहे हैं तो दूसरे डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसको और तरह से फैराडे ने अलग अलग तरीके से करना चाहा, तो उन्होंने इस मैग्नेट की जगह एक ऐसा मैग्नेट जो लैब में बनाया जाता है, दैट इज़ करंट कैरिंग कॉयल, इट इज़ ऑल्सो अ मैग्नेट, इट हैज़ सम काइंड ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसको यूज़ किया। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा होती हैं, ये हमने देखा है। अब उन्होंने पाया कि उसी कॉयल को, जिसमें हमने अपना बल्ब जोड़ रखा है एक पर्टिकुलर इंडिकेटर की तरह, कॉयल का यूज़ किया। अब जैसे हम कॉयल में जिसमें करंट फ्लो कर रही है, हम एक बार, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको इसी तरह दोनों को खड़े रहने दिया प्लेस। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, यहाँ पे देखिए ये पहली वाली कॉयल है प्राइमरी, इसमें हम जब स्विच ऑन करते हैं तो पाते हैं कि कुछ इंस्टेंट के लिए एक साइड बल्ब जला, ठीक है ना। फिर जैसे ही हम इसको, अब देखिए ये जला क्यों होगा, यहाँ पे प्राइमरी में किसी तरह की करंट मूव करी होगी तो कुछ समय के लिए मैग्नेटिक फील्ड आया होगा, फिर वो फील्ड पैदा होकर पूरा बन जाता है, यानी सारी फील्ड लाइंस कंटिन्यू बन जाती हैं। अब देखिए प्राइमरी में अब हम ऑफ करते हैं तो पाते हैं फिर से ग्लो करता है, लेकिन इस बार कलर चेंज हो जाता है, यानी करंट की डायरेक्शन बदली होगी। ठीक है, तो अब इस चीज़ को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि फील्ड लाइंस के साथ क्या हो रहा है। जैसे ही इंस्टेंट में हम ऑन करते हैं अपना ये जो प्राइमरी कॉयल में करंट है, वैसे ही वहाँ फील्ड बनना शुरू होती है और कुछ इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद फील्ड लाइंस कम्प्लीटली प्राइमरी में बन जाती है। ठीक है, तो अब देखिए ये साउथ नॉर्थ वाला जो बार मैग्नेट है, इसमें फील्ड लाइंस आपको दिख रही हैं, इसी तरह वहाँ पे भी बनती हैं। अब देखिए जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इट इज़ चेंजिंग। ठीक है, और जैसे जैसे हम वापस लेके आ रहे हैं वैसे फील्ड लाइंस यहाँ पे क्या हो रही हैं, फिर से चेंज हो रही है, लेकिन आगे बढ़ने पे फील्ड लाइंस की क्वांटिटी चेंज होती है और पीछे आने पे भी फील्ड लाइंस की क्वांटिटी चेंज होती है। और इस टाइम में जब स्टेबल है तब कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। अब देखिए ये आगे मूव कर रहा है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस कॉइल इज चेंजिंग। ऑलराइट, वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन चेंज, नॉट द क्वांटिटी। अब यहाँ पे क्या है, पीछे लेके आ रहे हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस कॉइल इज अगेन चेंजिंग। ठीक है, सो यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन हुई कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी इस कॉइल के थ्रू पास हो रही हैं। ठीक है ना, ये डिपेंड करता है कि इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होने वाली है। जब एक साइड जाते हैं तो इसमें येलो ग्लो करता है, दूसरे साइड जाते हैं तो रेड, यानी एक साइड में करंट की डायरेक्शन कुछ होती है, दूसरे साइड में कुछ होती है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं ये इनकी क्वांटिटी डिफाइन कर रही है चेंजिंग फील्ड लाइंस, यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जब चेंज होती रहती है केवल उतना देर के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अभी देखिए इस टाइम में स्टेबल है तो कोई भी नहीं है, वैसे ही यहाँ पे है, कॉयल में भी फील्ड लाइंस होती हैं। जब हम ऑन करते हैं तो कुछ इंस्टेंट के लिए बल्ब जलता है, फिर ऑफ करते हैं तो दूसरे डायरेक्शन में बल्ब जलता है, यानी दूसरे कलर से, यानी करंट की डायरेक्शन चेंज हुई है। इसका मतलब ऑफ और ऑन करते वक्त यहाँ पे क्या है, अभी इस टाइम ऑन है। ठीक है, तो हमको ये चीज़ पता है कि जब ऑन है तो इसमें फील्ड लाइंस वैसे ही हैं जैसे बार मैग्नेट में पैदा हो रही हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ये स्टेबल रखते हुए भी हमको ये पता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज इंक्रीजिंग इन वेरी स्मॉल इंस्टेंस। क्यों? क्योंकि जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू होती है, ज़ीरो से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कुछ होती चली जाती हैं नंबर्स में, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब इसमें सारी करंट फ्लो हो रही हो आपके प्राइमरी कॉयल में, तब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कांस्टेंट हो जाती हैं। तो यहाँ मोशन ना हो के नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही हैं जो हमारे कॉयल से होके पास कर रही हैं। ठीक है ना, तो प्राइमरी कॉयल है, अब उसमें देख लीजिए कि कैसे फील्ड लाइंस यहाँ पे अभी मैंने कुछ इंस्टेंट में ऑन किया, अब ये धीरे धीरे देखिए ये अभी बनना शुरू होगी फील्ड लाइंस। ठीक है, अभी ऑन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे फील्ड लाइंस जो हैं वो एक इंस्टेंट में, मान लीजिए मैंने ऑन किया तो कुछ फील्ड लाइन बनी, फिर थोड़ी देर बाद कुछ फील्ड लाइन, मतलब ये बहुत कम इंस्टेंट में हो रहा है, लेकिन फील्ड लाइंस बढ़ती चली जा रही हैं। ऑन करते ही एक मैक्सिमम आने के बाद रुक जाती हैं। जब सारी करंट इसके अंदर फ्लो होने लगती है प्राइमरी कॉयल में तो फील्ड लाइंस की संख्या कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब जब तक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ रही थी तब तक इसमें करंट इंस्टेंट में, छोटे से इंस्टेंट में फ्लो हुआ। ठीक है, और
ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अब इस टाइम में कांस्टेंट है, इसलिए कोई भी बल्ब नहीं ग्लो कर रहा। यानी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज होना जनरेट करता है हमारे इस फिनोमेना को या फिर इस करंट को। ठीक है, अब आप देखिए अगर इसको स्विच ऑफ करते हैं तब क्या होगा, अब ये फील्ड लाइंस घटेगी, बहुत तेज़ी से घटेगी, लेकिन घटने लग जाती हैं तो फील्ड लाइंस क्या होगा, फिर से चेंज हो रही है ना। अब फिर से ग्लो किया, लेकिन अब की बार दूसरी डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये फिनोमेना बिना इन दोनों के मोशन के हमने ऑब्जर्व किया, केवल स्टेबल रखते हुए फील्ड लाइंस की संख्या चेंज करके, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को चेंज करके। ठीक है, तो इसका मतलब फील्ड लाइंस नहीं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड होना ही काफ़ी नहीं है। यानी मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक करंट, बट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ ये स्टेटमेंट फैराडे ने दिया, ये काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं कि जब हम मोशन करवाते हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होती हैं, जो किसी कारण से एक करंट इंड्यूस होती है। इंड्यूस्ड वर्ड यूज़ कर रहा है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इट्स रीजन इज द मोशन ऑफ द मैग्नेट, बार मैग्नेट। सो इंड्यूस्ड करंट इज जनरेटेड, एक प्रभाव के कारण जनरेट हो रहा है इंड्यूस्ड करंट। ऑलराइट, तो इंड्यूस्ड करंट है, सो सम ईएमएफ इज ऑल्सो जनरेटेड। तो ईएमएफ इनके यहाँ पे पैदा हुआ है कुछ, देन दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। ऑलराइट, तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस दिस इंड्यूस्ड वोल्टेज और इंड्यूस्ड करंट, नॉट द ओनली मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब हमको पता है कि ये जितना भी पूरा प्रोसीजर है, ये जितना भी कुछ हो रहा है हमारे वर्ल्ड में, है ना, इसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा हो रही है इतने बड़े लेवल पे, ये इसी फिनोमेना का यूज़ करके हो रही है। ऑलराइट, सो नाउ कम टू द थ्योरी पार्ट। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन फ्रॉम Faraday's experiment are first, whenever the magnetic flux linked with a closed circuit changes, an induced EMF, magnetic flux linked with a closed circuit changes, an induced EMF and hence an induced current is set up in it. Alright, this one is first conclusion. And second is, the higher the rate of change of magnetic flux, how quickly we are changing the magnetic flux linked with the closed circuit, the greater is the induced EMF or current. So these are the two conclusions which are used. Alright, so these are the Faraday's experiment which are very important to understand. It is directly asked in your CBSE examination. Now next is, it is actually the related topic. So Faraday given his two laws by conducting the above experiments. So what are Faraday's laws? There are two laws, and one more law was there given by Henrik Lorentz. Alright, so Lorentz and Faraday studied it simultaneously almost on the same topic. तो लेंज लॉ, पहले फेराडे लॉ क्या था उसको देखते हैं. फेराडे लॉ इज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. ऑलराइट, सो व्हाट वाज फेराडेज फर्स्ट लॉ? whenever the magnetic flux linked with a closed circuit changes, an EMF and hence a current is induced in it, which lasts only so, this is very important, which lasts only so long as the change in the flux is taking place. आपने देखा एक्सपेरिमेंट में कि जब हम मैग्नेट को रोक देते हैं तो वहाँ पे कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होती है. जब तक मैग्नेट मूव कर रहा है उतना ही समय के लिए, उतने ही इंस्टेंट के लिए करंट होती है. सो दिस इज फर्स्ट लॉ विच इज़ ऑल्सो द स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. Magnetic flux linked with the closed circuit changes and EMF or a current is induced in it, which is very important word to write in your law.
Now next is second law of Faraday. The magnitude of the induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux linked with the closed circuit. ये इम्पॉर्टेंट है, ये उन्होंने मैथमेटिकल रिलेशन दिया. मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक, इट इज magnitude of the magnitude of the induced EMF, magnitude of the induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux. हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं टाइम dt में, d फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है. इट इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ना, तो E इज इक्वल टू d∅/dt. ये उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया. ये तो दो बातें हो गई मैग्नीट्यूड से रिलेटेड. लेंज ने, हेनरिक लेंज ने उस डायरेक्शन को समझाया जो करंट, इंड्यूस्ड करंट फॉर्म कर रही थी. ठीक है, तो इनका क्या कहना था लेंज का, इट इज़ अबाउट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, और वी कैन से द पोलैरिटी ऑफ EMF ऑल्सो. यानी फैराडे लॉ है मैग्नीट्यूड के लिए, लेंज लॉ है डायरेक्शन के लिए. फैराडे के दो लॉ हैं, लेंज लॉ एक है. द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट opposes the cause which produces it. Opposes the cause which produces it. It opposes the change in magnetic flux because induced current is generated by the change in magnetic flux. So the direction is such that the induced current opposes the change in magnetic flux. Magnetic flux के चेंज होने से ही पैदा हो रही है और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को ही अपोज करने वाली डायरेक्शन में घूमती है. अपोज करने का क्या मतलब है? बहुत आसान तरीका है इसको समझने का. मान लीजिए ये आपका वही एक्सपेरिमेंट है जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है. ये हमारी कॉइल है, ठीक है. ये हमारा एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ. वी आर मूविंग इट टूवर्ड्स दी कॉइल विद वेलोसिटी v. ऑलराइट, हम इधर लेके जा रहे हैं. अब लेके जा रहे हैं तो ये फील्ड लाइंस आपको पता है ये कुछ इस तरह से होके, जैसे हमने पीछे अपने उसमें भी देखा, वीडियो में भी. तो अब ये नॉर्थ पोल इधर है. अब ये जो इसमें करंट इस दिशा में ऐसे जनरेट होगी, इसमें ऐसे जनरेट होगी करंट कि ये इधर आने वाले मैग्नेट का अपोज करे. अपोज कब होगा? जब यहाँ पे नॉर्थ पोल हो जाए तो नॉर्थ पोल को धक्का देगा और यहाँ पे साउथ पोल हो जाए. मतलब ये मैंने रिंग ऐसे बना दिया, इसको ऐसे बनाना चाहिए था. एंड हियर इट इज़ जनरेटिंग सम काइंड ऑफ नॉर्थ पोल एंड हियर इट इज़ साउथ पोल. क्यों? क्योंकि यहाँ बार मैग्नेट जब आएगा तो नॉर्थ दूर हटेगा. तो इस तरह से करंट की डायरेक्शन होती है कि हियर ये साइड नहीं है, ये ऐसे 90 डिग्री परपेंडिकुलर में है कॉइल, और राइट साइड में नॉर्थ, लेफ्ट साइड में साउथ. क्यों जनरेट हो रहा है? क्योंकि करंट कैसी पैदा हो रही है, इसको मैं और थोड़ा क्लियर बना देता हूँ, ऐसे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है. ऐसे समझ लीजिए ये, ठीक है. अब यहाँ से आ रहा है नॉर्थ पोल, साउथ पोल. ये हो गया गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना. गैल्वेनोमीटर जैसे हम इसको इधर लेके आते हैं तो ऐसे करंट जनरेट होती है कि इधर इसका करंट, हमको पता है ना करंट मूव करता है कॉइल में तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. तो हियर इट इज़ जनरेटिंग नॉर्थ एंड हियर इट इज़ जनरेटिंग साउथ. और ऐसा कब होता है कि इधर नॉर्थ हो? तो इसके लिए समझने के लिए राइट हैंड रूल लगाना पड़ेगा हमको, थंब रूल की. फिंगर की डायरेक्शन हमारी तरफ है तब अंगूठा इधर है. सो हियर फील्ड लाइंस इस आउटसाइड, तभी ये नॉर्थ होगा, इधर होना चाहिए फील्ड लाइंस. ऐसा कब होगा? जब इस तरह से, यानी आपकी तरफ आ रही है ऐसे, यानी एंटी क्लॉकवाइज करंट मूव करेगी. ये अंदर वाली है, ये बाहर वाली साइड है, ये आपकी तरफ है और ये पेज के अंदर की ओर है राइट साइड वाली. तो ऐसे घूम के आपकी तरफ आ रही है, ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे घूम के आती है फिर आपकी तरफ, यानी एंटी क्लॉकवाइज. देन इट इज़ एंटी क्लॉक. और एंटी क्लॉक होने पे यहाँ नॉर्थ हो जाता है, यहाँ साउथ, और ये इधर वाले आने का अपोज करने लगता है. सिमिलरली फॉर सेकेंड वन वी कैन से, ये हमारा नॉर्थ मान लीजिए, ये हमारी कॉइल है, ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है. अब इसमें
मैग्नीट्यूड जो होगा, ये इसको अभी रहने देते हैं, अभी बाद में बताएंगे। नॉर्थ साउथ, नाउ वी आर मूविंग इट अवे, हम उधर लेके जा रहे हैं। अब क्या होगा, ये उधर जा रहा है तो ये ऐसी डायरेक्शन में करंट जनरेट करना चाहेगा कि ये इस मैग्नेट को पकड़ के खींचे, है ना। यहाँ पे धक्का दे रहा है क्योंकि ये हर उस चीज़ का अपोज कर रहा है जिससे ये पैदा हो रहा है। तो ये पैदा किससे हो रहा है, इधर मूवमेंट से, तो इधर मूवमेंट से पैदा हो रहा है, पास आने से पैदा हो रहा है, तो पास आने नहीं देगा ये, ठीक है। ये दूर जाने से ये जनरेट हो रही है करंट, देन इट विल नॉट लेट इट गो। तो यहाँ पे क्या पैदा करना चाहेगा, साउथ पोल, हियर इट विल जनरेट नॉर्थ पोल। तो फॉर साउथ पोल टू बी हियर, ये ऐसे ना हो के हमें नॉर्थ इधर रखना है, यानी फील्ड लाइंस इधर से निकलनी चाहिए, क्योंकि हमको पता है ना कॉयल में जब करंट फ्लो करती है तो कॉयल में फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं, तो इधर होनी चाहिए, नॉर्थ इधर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, हमारा उंगलियां ऐसे होगी तब अंगूठा ऐसे होगा, तो यानी ये इधर से ऐसे अंदर जाएगी और ऐसे बाहर आएगी, यानी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। ये वाले को अपनी तरफ मानिए और ये वाले को पेज के अंदर मानिए, ये वाले को बाहर की तरफ, तो ऐसे ऐसे घूमने लगेगा, ऐसे करके इस तरह से, ठीक है ना, ये इस तरह से। तो ये लेंज लॉ का स्टेटमेंट फिर से देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट, दैट इज इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच एक्चुअली जनरेट्स इट। तो ये था हमारा दोनों लॉज। अब इसके बारे में हम आगे मैथमेटिकल स्टडी करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।